Okay, welcome back everyone. So we were discussing our second chapter, biological classification. We are continuing our Protista example. Okay, in last video lecture we have discussed the example of Protista, like diatoms we have discussed, and we have discussed dinoflagellate. All right. So continuing our classes. So today we will discuss another example of Protista. Number 3 example. Okay, continuing the Protista example. Englena. Okay, we are continuing our Protista example. So first of all, you need to write the characteristics of Protista. Then we need to know the examples of Protista along with their characteristic. Okay. So Protista characteristic, I guess you will able to write by your own. Okay. In case of in Protista, what happened? It includes all unicellular eukaryotic organism. Some of them are found in fresh water. Some of them are found in marine environment. So you just find out from each example one specific characters, and you can include in Protista character. If question asks, write down the characteristic of Protista. So what you can do, you can just take out some example. You can take out a characteristic of some example and put it on that Protista character. Okay. So continuing Englena. So Englena comes under which subdivision of kingdom Protista? Englena are placed under Englenophyta subdivision of photosynthetic Protista, right? See, Englena is a very important living organism. Because why? Because it shows the characteristics of both animals and plant. Okay, it has the characteristics of both animals and plant. इसमें एनिमल्स और प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पाए जाते हैं यूग्लेना में. प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉप. ऑटोट्रॉप माने दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, सो ये हो गया प्लांट का कैरेक्टर. दे शो ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल का कैरेक्टर क्या हो गया? दे कंटेन सेल वॉल. ओके, इसमें क्या होता है? सेल वॉल पाए जाते हैं. सो बहुत सारा कैरेक्टर्स है एनिमल्स का, प्लांट्स का, इसीलिए इसको एनिमल्स में भी इंक्लूड करते हैं, प्लांट्स में भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है. सो इट शोज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल. तो एग्ज़ाम में कभी कभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल. सो एग्लेना. क्यों? क्योंकि उसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सेल वॉल शो करते हैं. तो एनिमल प्लांट्स बहुत सारा कैरेक्टर्स हैं जो शो करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए इसको दोनों में रखा जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में. ठीक है. तो वी विल सी सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ Englena. दे आर फाउंड इन both, not both, they are found in stagnant fresh water. दे आर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर. स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर मतलब जहाँ पानी रुक, मतलब यू नो द वाटर डज नॉट फ्लोस, जहाँ पे पानी रुक के रहते हैं, जहाँ फ्लो नहीं होते है पानी, तो ऐसा जगह में ये ऑर्गेनिजम्स को पाए जाते हैं. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. They are photosynthetic. क्यों? क्योंकि Englena हो गया,
डायटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, दे आर ऑल फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस, तो लाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसलिए all those organisms are placed under photosynthetic protista. So they are photosynthetic biflagellate protista. So biflagellate मतलब उन लोग का बॉडी में 2 फ्लैजेलेट पाए जाते हैं. Now what is flagella again? Flagella is a thread-like structure which is present in some microorganisms which helps in the movement of their body. We have already discussed, right? और फ्लैजेला क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट में मदद करते हैं. जैसे हम लोग का बॉडी में पैर होते हैं, उन लोग का बॉडी में फ्लैजेला होता है जो मूवमेंट में मदद करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वी कैन टेक. पिगमेंट लेते हैं. क्या क्या पिगमेंट पाए जाते हैं? So in case of Englena, what are the pigments present? We need to see. There is a pigment chlorophyll A present, chlorophyll C होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं और जेंटोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं. So ये सब पिगमेंट यूग्लेना में पाए जाते हैं. ओके, दे कंटेन क्लोरोफिल. देखो हम लोग प्लांट्स पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट्स में तो पिगमेंट रहेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट रहेंगे. तो ये हो गया प्लांट्स का कैरेक्टर. अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स में पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, तो उसको हम लोग प्लांट्स में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अगर क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं तो उसको हम लोग प्लांट्स में इंक्लूड किया जाता है. रिजर्व फूड देखते हैं, कौन सा रिजर्व फूड पाए जाते हैं उसका बॉडी में. बीटा 1,3 ग्लूकेन. तो इसको अभी जस्ट याद रखना. ये बीटा 1,3 ग्लूकेन ये सब क्या है? ये एक चैप्टर है, फर्स्ट ईयर में ही है, बायोमोलिकुल्स. वहाँ पे अच्छे से दिखेंगे ये सब. कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, ये सब अच्छे से दिखेंगे वहाँ में. प्रोटीन. So the reserve food that we find in case of Englena are beta 1,3 glucan. So ये सभी है Englena का important characters. The remembering part is they shows the connecting link between plants and animals. Why? Because they contain chlorophyll pigment, yes, in their body, and also they shows autotrophic mode of nutrition. That means they prepare their own food with the help of sunlight and water. Why they show animal characters? Because the cell contain cell wall structure. They have a cell wall inside their body. They show movement also. Okay, they show movement. That's why they are included under animals also. So zoology यूग्लेना को अपना डिवीज़न में रखा गया. बॉटनी यूग्लेना को अपना डिवीज़न में रखा गया. कौन सा डिवीज़न? यूग्लेनोफाइटा. ठीक है. और कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द स्टेगनेंट फ्रेश वाटर. स्टेगनेंट मतलब जहाँ पे पानी फ्लो नहीं होता है, फ्रेश वाटर. हाँ, एक जगह में रुक के रहता है, पानी फ्लो नहीं होता है, वहाँ में पाए जाते हैं. एंड दे आर फोटोसिंथेटिक बाइफ्लैजेलेट प्रोटिस्ट. सो दिस आर द पिगमेंट दैट इज फाइंड इन केस ऑफ यूग्लेना. रिजर्व फूड आर बीटा 1,3 glucan. So for now just remember this, and we will discuss in details in biomolecule chapter in the first year only. So this is all about Englena. So try to see the structure of Englena. Okay, किताब में है, नहीं तो YouTube में भी देख सकते हो, Google में सर्च करो. So for your concern, let me draw a rough diagram. So Englena somehow it looks like this. बस इस तरह से देखते हैं यूग्लेना, दिखाई देते हैं. ठीक है.
अंदर में इसका बॉडी का अंदर में एक क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट। दिस आर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। और फ्लैजेला होता है, 2 फ्लैजेला होता है, ये एक फ्लैजेला, दिस इज 1 मोर फ्लैजेला। सो दिस इज अ रफ डायग्राम, ओके, जस्ट फॉर योर टू अंडरस्टैंड। सो डायग्राम अच्छे से देखना किताब में। सो बॉडी इस तरह से होते हैं, दे हैव टू फ्लैजेला 1 and 2 which help in the movement of their body. Flagella is like a thread like structure, रस्सी जैसा होते हैं एक स्ट्रक्चर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो मूवमेंट में मदद करते हैं उसको। तो क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं अंदर। सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लेना, ओके। सो यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस को तुम लोग भूल नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड, ओके। सो प्रोटिस्टा, सो फार वी हैव डिस्कस एग्जाम्पल। डायटम्स को देखा हम लोग, डाइनोफ्लेजेलेट को देखा, यूग्लेना को देखा अभी। एंड स्लाइम मोल्स इज देयर, आई विल गिव यू दिस स्लाइम मोल होमवर्क। कुछ टॉपिक खुद से देखना, ओके। स्लाइम मोल, then only you will open your book, otherwise you will not open your book. So try to see slime molds from your NCERT book, okay. So, उसका कैरेक्टर्स को अच्छा से जानना, कैरेक्टर्स को देखना। सो स्लाइम मोल्ड्स कम अंडर विच सब डिवीजन ऑफ प्रोटिस्ट, किंगडम प्रोटिस्ट? इट कम्स अंडर सेप्रोफाइट सब डिवीजन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। सेप्रोफाइट ये कहाँ, कौन सा सब डिवीजन में आता है? स्लाइम मोल्ड्स कम अंडर सेप्रोफाइट, राइट। स्लाइम मोल्ड्स, सेप्रोफाइट मतलब जो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज एरिया में ग्रो करते हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म विच ग्रोज ऑन ए डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज एरिया, दोज ऑर्गेनिज्म वी कॉल इट एज ए सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। स्लाइम मोल्ड्स एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा में। सो दिस आई विल गिव यू होमवर्क, ट्राई टू सी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, try to write point wise your answer, and then only you will open your books, okay. So far in Protista, let's again revise. Protista is divided into three subdivision: photosynthetic, then protozoa, then saprophytic. So under photosynthetic, again it is subdivided into chrysophyta, where we take the example of diatoms, then pyrophyta, we take the example of dinoflagellate, then euglenophyta, we just done euglena. Then comes next subkingdom, protozoa. Under protozoa, it is again subdivided into sarcodina, then zooflagellata, then ciliata, then sporozoa. So example is there. So the kingdom, the dead kingdom, you will discuss in details in zoology part. So we will leave here, okay. zoology में extra से है वो first chapter animal kingdom में, वहाँ पे details में पढ़ेंगे, okay. अलग टीचर पढ़ेंगे तुम लोग को, zoology का टीचर। यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। the kingdom प्रोटोजुआ को जूलॉजी में तुम लोग पढ़ेंगे। सो सेप्रोफाइट, स्लाइम मोल्ड्स, आई गिव यू होमवर्क, सो यू डू फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रोटिस्टा किंगडम, दैट इज वी हैव कंप्लीटेड 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। सो कमिंग टू द नेक्स्ट किंगडम which was given by H.F. Copeland, 4 kingdom system of classification, right? So we will discuss next kingdom, 4 kingdom system of classification, H.F. Copeland. What is his contribution? H.F. Copeland proposed Monera kingdom, right? So यहाँ पे हम लोग Monera को discuss करेंगे. So new kingdom Monera. So we are not going to write again and again all those charts, okay? So try to remember when I talk about Monera, that means we are talking about the 4 kingdom system of classification given by H.F. Copeland.
We are not going to write again and again the chart. Okay, so we'll just write directly kingdom Monera. Monera में क्या होते हैं? So first we will see some important features of kingdom Monera. Okay, पहले इसका important characters देखते हैं. Monera. Alright. Monera includes all prokaryotic organism. देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंसेस क्या है ये डिटेल्स में जानेंगे सेल चैप्टर जो फर्स्ट ईयर में ही है सेल चैप्टर वहाँ पे देखेंगे लेकिन यहाँ पे हम लेट मी जस्ट टेल यू सम बेसिक थिंग्स. So difference between prokaryotic and eukaryotic, it means I have already said, but again let me say. देखो जो बायोलॉजिकल वर्ड होते हैं वो सब लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाते हैं. ओके, दिस इज नॉट इंग्लिश लैंग्वेज. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्यों लिखा जाता है लैटिन? वी हैव ऑलरेडी सेड. सो प्रो मीन्स अर्ली, पहला ज़माने में. ओके, अर्ली द फर्स्ट फॉर्म. कैरियोन बोलते हैं उसको, एक कैरियोटिक में बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में. इसका मतलब है न्यूक्लियस. और सेल भी बोलते हैं. चलो न्यूक्लियस नहीं, सेल बनाए तो फिर से. सो जब फर्स्ट इवोल्यूशन हुआ, जब फर्स्ट टाइम में सेल फॉर्म हुआ उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. जो इवोल्यूशन का टाइम में जो पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक और सेल बोलते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है. देयर इज़ नो एनी प्रॉपर न्यूक्लियस. मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होते उसमें. ठीक है, सो द सेल इज़ नॉट इन ए प्रॉपर फॉर्म. दिस वॉज द अर्ली फॉर्म सेल विच इज़ नॉट इन ए प्रॉपर फॉर्म. ठीक है, प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक मतलब क्या है? यू मतलब लेटर और मॉडर्न. कैरियोन मतलब सेल. ओके, लेटर और मॉडर्न सेल. जो इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के बाद जो सेल फॉर्म हुए उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. ठीक है, जो मॉडर्न सेल फॉर्म हुए जो अभी के ज़माने में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं, इसमें प्रॉपर फॉर्म में सेल पाए जाते हैं. सो व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड, व्हाट इज़ सेल ऑर्गेनेलिस, ये सब चैप्टर है सेल. वो चैप्टर में पढ़ेंगे तुम लोग अच्छा से डिटेल्स में. अभी के लिए सिर्फ जानो प्रो मीन्स अर्ली फॉर्म सेल, यूकैरियोटिक मीन्स मॉडर्न फॉर्म सेल. ठीक है, ओके. सो मोनेरा इंक्लूड्स, सो कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करते हैं प्रोकैरियोटिक? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं. वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलते, इसलिए उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है, सो मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. दे लैक प्रॉपर न्यूक्लियस. सो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होते. They do not have membrane bound organelles. ठीक है, membrane bound organelles. They do not have cell organelles. देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस अभी डिस्कस नहीं करूँगा, अभी के लिए से पढ़ के रखो, जान के रखो. ओके, सो व्हेन वी डिस्कस दिस वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, वी हैव टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस. सो ये सब चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे सेल चैप्टर में. सो ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं मोनेरा में. ओके, सो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होते, होगा लेकिन प्रॉपर नहीं होंगे. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होंगे. ओके,
नेक्स्ट, सो किंगडम मोनेरा इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू, किंगडम मोनेरा को फिर से सब डिवाइड किया गया। देखो बायोलॉजी में ना ऐसा होता है, एक टॉपिक लिया उसको फिर से डिवाइड करते हैं, उसको फिर से सब डिवाइड करते हैं, तो ऐसे यू नो स्प्रेड, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, नो इट गोज ऑन बायोलॉजी में टिल नाउ। और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अभी भी डिस्कवर नहीं किया गया, ओके, स्टिल द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। सो इफ दे फाइंड समथिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, दे नीड टू प्लेस दैट ऑर्गेनिज्म इनटू समथिंग, इनटू सम किंगडम। सो क्या करेंगे, नया किंगडम फिर से प्रपोज करेंगे। तो इसी तरह बायोलॉजी में स्प्रेड होते जाता है चैप्टर। पहले तो छोटा सा मिलेगा एक टॉपिक, उसके बाद जब पढ़ोगे उससे और फिर स्प्रेड होगा, उसको जब पढ़ोगे उससे फिर स्प्रेड होगा। सो इट गोस ऑन, गोस ऑन। सो मोनेरा इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू, इसको फिर से सब डिवाइड किया गया। तुम लोग नोट्स कंटिन्यू करो, हाँ, नीचे में लिखते जाओ। दिस सब डिवाइडेड इनटू आर्किबैक्टीरिया, then eubacteria, then mycoplasma, then cyanobacteria, और इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्लू, B stands for blue, G stands for green, A stands for algae, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। सो जब हम लोग ये सब का कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, सो अल्टीमेटली हम लोग किसका कैरेक्टर पढ़ेंगे, मोनेरा का कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स includes under the kingdom Monera. So whenever we discuss the characteristics of all those organisms, basically we are discussing the characteristic of Monera. So same characters ही शो करेंगे, ये सब भी मोनेरा का जो कैरेक्टर्स शो करेंगे ये सब भी उसका वो कैरेक्टर्स ही शो करेंगे। क्यों? ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनेरा, दैट्स व्हाई, राइट। सो आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। यू राइट अ फुल फॉर्म, ओके। सो वी नीड टू डिस्कस इट्स ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एग्जाम्पल देखना है। ऑलराइट, सो पहले आर्किबैक्टीरिया को पढ़ते हैं, उसके बाद माइकोप्लाज्मा को पढ़ते हैं, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ते हैं। यूबैक्टीरिया को लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा होंगे इसलिए इसको लास्ट में पढ़ते हैं। सो इट डजंट मैटर कि सीरियली जाना है, ऐसा बात नहीं है। सो वी विल कम विद आर्किबैक्टीरिया फर्स्ट। आर्की मीन्स द वर्ड आर्की, आर्की का मतलब है एंशियन। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया, यू नो। आर्की मतलब एंशियन, जो पहले ज़माने में एग्जिस्ट होते थे बैक्टीरिया, वो सब बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया आर्किबैक्टीरिया में, और इसको बोलते हैं आर्किबैक्टीरिया, ओके। जितना भी बैक्टीरिया होते थे पहले ज़माने में, एंशियन ज़माने में, वो सब बैक्टीरिया को हम लोग आर्किबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। सो एक एक करके सेपरेट नोट्स बनाना, मैं यहाँ में लिख रहा हूँ आर्किबैक्टीरिया का कैरेक्टर्स। सो आर्किबैक्टीरिया आर एंशियन बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर नोन एज एंशियन बैक्टीरिया और ओल्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट थिंग, दे लिव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो पहले ज़माने में हम लोग का यूनिवर्स क्या होते थे, बहुत गर्म होते थे पहले ज़माने में, टेम्परेचर बहुत हाई रहते थे और बहुत वोल्केनो, ऐसा वोल्केनिक एरप्शन होते थे, अर्थक्वेक होते थे पहले ज़माने में, व्हेन इवोल्यूशन टुक प्लेस। तो इन दैट कंडीशन दोज बैक्टीरिया लिव्स, okay. So these bacteria are found in
हॉट टेम्परेचर सॉल्टी एरियाज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। हॉट टेम्परेचर सॉल्टी एरियाज, हॉट टेम्परेचर मतलब जहाँ पे वोल्केनो होते हैं, लावा होते हैं, उसमें पाए जाते हैं ये सब बैक्टीरिया। सॉल्टी एरियाज जहाँ पे सॉल्टी, यू नो सॉल्टी, ओके, सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। सो इन सच habitat these bacteria are found, okay. So these are ancient bacteria, they are found in hot temperature salty areas. Next, what we can write, their cell wall is made up of peptide, एक मोलिकुल्स होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। सो देयर इन केस ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सच मोलिकुल नोन एज पेप्टाइडोग्लाइकन। जैसे याद रखना, ये सब देखेंगे इन डिटेल्स बायोमोलिकुल्स चैप्टर में। सो और एक कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, याद रखने वाला कैरेक्टर्स कौन सा है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स, सो देयर लेग proper nucleus, membrane bound organelles, ओके। सो द लेग प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उन लोगों का सेल में ये सब नहीं रहेंगे, ओके। सो डेट्स इट आर्कियोबैक्टीरिया हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा। और चाहिए, इफ़ यू फील लाइक यू वांट मोर, अगर तुमको और चाहिए तो एनसीईआरटी बुक में है, उसको देखना। सो दिस आर द सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नीड टू नो, ओके।